everyone, my name is Rusha Iqbal And my name is Ushba Khan. and it's a pleasure to host today's event. We warmly welcome you all on behalf of Ziauddin University Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. This program is proudly organized by the Department of BS Cosmetic Sciences, reflecting our commitment to academic excellence and professional growth. Today's session titled Skill Health Matters Prevention, Protection and Care of Common Skincare Problems highlights the importance of awareness and proper skincare. Through this program, we aim to promote knowledge about prevention, protection, and healthy skin practices. We are truly honored to have such distinguished experts with us to guide and inspire us today. To begin this blessed gathering, I would like to invite Adaullah from PharmD Third Year to recite the verses of Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Thank you so much for the recitation. Now, I request everyone to please stand up for the national anthem of Pakistan, followed by the Ziauddin University anthem. Thank you so much. Before starting this program, I would like to express our sincere appreciation to Dr. Muhammad Yasir Mubarak, a PharmD with an MBA and currently an MPhil scholar with over 15 years of experience at GlaxoSmithKline and 8 years at Brooks Pharma, and currently serving as Director Marketing at GenPharm. He has played a significant role in pharmaceutical marketing and healthcare development, so we are especially grateful for your efforts in bringing our respected guest speaker here today. Your dedication and continued support are truly appreciated. We are honored to have Dr. Maqsood Ahmed Khan, Associate Professor and Head of the Department of Cosmetic Sciences, with over 22 years of experience in industry, teaching, and research. His expertise spans from pharmaceuticals and cosmeceutical sciences. So we invite you to please come on stage for the welcome speech. Assalamu alaikum, our respected faculty members and honorable guests and speakers and dear students. And we, on behalf of Ziauddin University, welcome all our guests and speakers that they are here they spend their time here to share their latest information and knowledge regarding the pharmaceuticals as well as cosmeceuticals. And definitely we are committed here at the HOD Department of Cosmetic Science to provide the students with the latest information and knowledge and upgraded information that they were helpful for your career and your further development in your career and professionalism as well. So this program is BS Cosmetic Science. You know that 4-year degree programs, and we are the pioneer in this industry, that we are committed to provide such kind of the experts and that will be helpful for the future cosmetic industry. And because nowadays there is no field or university who are accept us that providing such kind of the BS program, 4-year programs, because we feel that this is the need of the time to have such program and to provide such individuals that will make the products, pharmaceutical products, and the regulatory side as well, that meets the requirement of the day. Because as such, there is no program in the field that have in the future. First of all, the thing is that the cosmetic industry is very growing industry. And you know that around 1.2 billion is markets here, and it's further growing. And globally, it's around 2.85 billion market. So means it's has great potential for future growth in your career as well.
So hopeful for after completing this course, you will be very potential and valuable professional in this field. So I congratulate all the and give word of thanks to our Dr. Yasir Mubarak who facilitate this program and our guest speakers who are here for presenting their latest information regarding the cosmetic industry, and our the organizers and the coordinators who give their best to perform this events happen. Thank you so much. We're deeply honored to have such distinguished personalities with us today. A heartfelt thank you to Dr. Najia Ashraf, consultant dermatologist and aesthetic physician, and Dr. Irfanullah Khan Tareen, president of Pakistan Association of Dermatologists. Your presence today adds immense value to this event. We are truly grateful for your time and expertise. And now the moment we all have been waiting for. We are honored to have Dr. Najia Ashraf, a consultant dermatologist and aesthetic physician with us today. She is highly respected for her expertise in clinical and aesthetic dermatology and her dedication to patient care and skin health awareness. Ma'am, we warmly invite you to please come on stage, share your insights with us. Assalamu alaikum, everyone, and it's a lovely session, almost houseful. I am really humbled and really touched to be invited as a guest speaker here for today, the first time in my career, to Ziauddin University. It is a prestigious institute, and being in South City Hospital, we are truly neighbors of Ziauddin Hospital all the time. I am a consultant dermatologist. Thank you for the lovely introduction. And I'm practicing in National Medical Center, South City Hospital, and I have a clinic of my own in Zamzama, which is opposite Butler's Chocolate Cafe, and that is a skin and laser clinic. For my specialty, because you are all students of PharmD, so I'm an MBBS student to begin with, and then I've done my master's, which is MSc in Clinical Dermatology from King's College London. And in that degree, we are trained for both of the diseases, both sides of skin, which is dermatology, the disease of skin, hair and nails, and the aesthetics, which is the beauty of the skin. As Doc Saab has just mentioned, that you are the pioneer in starting the BS in cosmetics, and as you know, in the last decade, it's a global, not epidemic, it's a pandemic to get into this field. If it's USA, if it's whether it's Europe, it's UK, it's US, Far East, Pakistan, India, wherever you go, even Middle East, everybody wants to go and as a professional in this field, and even if you're not a part of this field, as a patient, we just want to visit these clinics to get more and more appealing, good looking, and whatever diseases we have. The awareness in the last decade has been overwhelming, and we cannot, when we are talking about this, we cannot rule out the importance of media here. And the media, including myself, as I've been a part of it since last 19 years in Pakistan, so it has basically done a lot in making awareness. And now, in my opinion, it is over awareness. So everybody is thinking that he or she can do or buy products now, because earlier it was a part that only awareness was a thing, that people don't know about diseases. But now what has been done, because of all of the social media marketing and stuff, so many companies and whosoever wants to, because you are PharmD, so you understand, so whoever knows a bit about formulation is entering into this field with nonsense sort of products. Very few are good one, but as a consumer, because of the good packaging, I can be an easily victim to buy anything which is not even good and even tested with good laboratories. So here is the role from your side, and here's the role from our side, to work with good products. And as today's session is all about, and we are here with Gen Pharm, because this today's seminar cannot be possible without Gen Pharm. They have a good history of over 2 decades in Pakistan, and now obviously since last many years they are manufacturing, as you can
and seen the different Beneflex that are there from the moment I entered this department. I saw all of the products that are being in the market, and we are prescribing them as well. So products are too many in the market. It's not the matter of the products, it's how good they are. What's their reputation, who is making them, and how they can be advised. And if we don't follow these lines, obviously the patients and obviously we ourselves can be victimized as well. So with that, I'll begin my talk. I just want to, before I begin this thing, I wanted to be a bit of interactive. तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग already skin diseases के साथ affected हैं या किसी dermatologist के पास जाते होंगे? Any? नहीं, कोई भी नहीं, सबकी स्किन बिल्कुल ठीक है। यासिर आप किधर लेकर आए मुझे? यहाँ तो कोई है ही नहीं पेशेंट। हाँ सब अच्छा, एक दो ठीक है, एक दो पिंपल बाहर कौन यहाँ है, लेकिन ये अभी कोई कन्फेस नहीं करना चाह रहा। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। सो विच इज़ द कॉमनेस्ट डिजीज इन योर ओपिनियन दैट यू हैव सीन इन योर फैमिली इन एनीथिंग जो आपके नज़र में अफेक्ट करती होगी हम लोगों को? कोई आइडिया जो आप लोगों ने देखा हो? Acne, very good, very nice. Second, very good. Third, पिगमेंटेशन, बिल्कुल सही। हालांकि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, बट दिस इज द बिल्कुल ठीक। हाँ, कॉस्मेटिक्स, वाह, ओके, हाँ फिर तो सही जवाब दे रही हैं आप लोग, सही है, गुड। सो अब हम दो तरह के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, जैसे BS कॉस्मेटिक्स भी हैं और वो भी हैं, सही। तो बिल्कुल सही कहा, द एग्जैक्ट आंसर, एक्ने इज द मोस्ट कॉमन, सेकेंडली द हेयर फॉल, थर्ड इज द पिगमेंटेशन। किसको गोरा करने वाली क्रीमें लगाने का शौक है, ये बताएं। रंग गोरा करने वाली क्रीमें किसको लगानी है, ये बताएं पहले, या कोई लगा रहा है? और सिरप्स कौन कौन लगानी है? जो मुख्तलिफ एसिड्स इतने इंटरनेट पे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, फेरुलिक एसिड, फ्ला एसिड, ये कौन कौन लगा रहा है? और दो हाथ भी है हम लोग की। और ये अच्छी बात है कि मेल है वो पीछे स्टूडेंट, वो भी दो किस्म के लगा रहे हैं। वाह भाई, ये दिस इज द अवेयरनेस दैट इज रिक्वायर्ड, एंड दिस इज द ओवर अवेयरनेस दैट आई एक्चुअली मेंशन। एंड ऑब्वियसली दिस फील्ड इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स एंड ओनली और लेडीज एंड वुमेन, दिस इज फॉर बॉयज एज वेल। एंड ऑब्वियसली हम ये बात नहीं है कि किसी को अच्छे लगने का शौक है तो दैट शुड बी ओनली फॉर द फीमेल, इट इज देयर फॉर मैन। एंड अगर कोई सोच रहा है उन लाइंस पे, लाइक वो जो हमारे पीछे बैक बेंचेस हैं, तो आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब। और ऑब्वियसली जब वो आगे अपने करियर में परस्यू करेंगे तो ये पैशन वुड डेफिनेटली टेक देम टू अ लेवल नेक्स्ट। सो विद दैट, आप आज के लेक्चर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं आप? आपको क्या लगता है, फॉर व्हाई आई एम हियर ऑल द वे कमिंग फ्रॉम कराची टू दिस पार्ट, क्या आपको लगता है कि हमें बात करनी चाहिए? एनी चीज़? जनरल स्किन केयर, ठीक है। और कोई चीज़ जो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप बात करना चाहें? एस्थेटिक्स की क्या डेफिनेशन है? चलिए, जिसने ये कहा है वो पहले ये बताया, व्हाट इज एस्थेटिक्स, व्हाट इज कॉस्मेटिक एंड व्हाट इज एस्थेटिक? कभी कभी पढ़ाने का मौका मिलता है, पूछने का भी तो दे, बता दो, मैं भी दूंगी। कॉस्मेटिक क्या है? क्या मैं इंटरफेयर करूं? हाँ। स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हाँ। आप जो अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं फार्मेसी या कॉस्मेटिक में, तो जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपकी ऑब्वियसली एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से है, एस्थेटिक के हवाले से है। तो डॉक्टर साहिबा का जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठाएंगे और इनसे जो आप इनसाइट ले सकते हैं वो शायद आपको ढूंढने से भी ना मिले। जो इनका विजन है, अब्रॉड इन्होंने जो है वो इनका सारा जो है वो एजुकेशन है और डायग्नोसिस इनकी बहुत अच्छी है और उसके बाद जो है वो इनके ट्रीटमेंट्स की इनकी काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है। तो आप बड़े इनसाइट इनसे ले सकते हैं। तो आस्क योर क्वेश्चन जिसमें आपको अपने एजुकेशन में जो है वो बहुत हेल्प मिलेंगे, नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे जो आपको यहाँ से असाइनमेंट्स मिलते हैं नई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या आपके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको, उसमें आप बहुत सारी जो है वो इस वक्त इंफॉर्मेशन से अपने आप को जो है हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू यासर फॉर योर इनपुट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम तो भी इनपुट लेंगे भी और देंगे भी, एस्थेटिक और कॉस्मेटिक में क्या फ़र्क है?
एस्थेटिक देखें इज अ ब्रॉड टर्म जिसमें ब्यूटी के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स होंगी, चाहे वो प्रोसीजर्स होंगे, जो भी लेजर्स हो गए, तो बोटॉक्स फिलर हो गए, पीलिंग्स हो गई, एक्सोसोम्स हो गए, थ्रेड्स हो गए एंड वेरियस अदर थिंग। बट कॉस्मेटिक की जहाँ तक बात करते हैं तो प्रोडक्ट रिलेटेड डेफिनेटली चीज़ें हैं, उसमें उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ क्या बन रहा है क्या नहीं है। एस्थेटिक में प्रोडक्ट्स की बात हम इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे होते, वहाँ प्रोसीजर्स एंड हाउ टू ब्यूटिफाई उसकी बात हो रही होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम जो बात करना चाहेंगे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हम एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करेंगे और साथ ये भी समझना हमें चाहिए कि हम जब भी इस फील्ड के अंदर हैं और हम कभी भी कोई मार्केट में या इंटरनेट के ऊपर ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो इम्पल्सिव परचेजेस से गुरेज करते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट एंड वेयर टू टेक द गाइडेंस, ताकि हम इस तरह की जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनसे विक्टिमाइज होके अपनी स्किन को ख़राब ना करें। सो विद दैट आई बिगिन माई प्रेजेंटेशन। स्किन हेल्थ मैटर्स, एनी आइडिया? उससे पहले आंसर ही उसी में लिखा हुआ है कि क्या है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली आप सारे ऑर्गन्स के पीछे भागे दौड़े, सबसे बड़ा ऑर्गन ये है कि जिसका ट्रांसप्लांट भी इंतहाई डिफिकल्ट है। इट्स नॉट ईजी। आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लिवर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट फॉर द स्किन इट इज़ द वेरी डिफिकल्ट पार्ट। सो यू हैव टू टेक, और ऑब्वियसली इट्स देयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली दिस इज द बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शंस, रेगुलेट्स टेम्परेचर बैलेंस, ये सब चीज़ें आपको पहले ही पता है। रिफ्लेक्ट्स इंटरनल हेल्थ स्टेटस। स्किन इज कॉल्ड द मिरर ऑफ द बॉडी. So if you are having acne, as we talked about a few minutes back, this clearly shows that you have a hormonal insult, and that is known as polycystic ovarian disease. And in case of females, and in case of male, it's like the imbalance of the hormones, testosterone and rest of the things. So you need to understand, if your hair fall is quite massive and it's been there for a couple of months, it's not there because you have done a crash diet or something. It's just because of so many other factors. What other diseases you are having, especially hormonal one, what is your diet pattern, how do you do things, how quickly you lost the weight. So there are so many things. So what is it actually, the main symptom is hair fall, but it is actually taking you to so many things. Some people have problems in liver, and then when we test those diseases through blood tests, we come to know that why the skin is getting affected. Diabetes, which is the very common problem in every age group now in Pakistan. So when the diabetes is not controlled, and it's not controlled for months and months, then it has its effects on the skin, and so many people have developed diabetic dermatitis. So that's, we need to understand that if we are seeing skin with any disease, we need to understand that it actually has some link with the body. It's not something coming up from the top. Yes, there are many diseases like fungus and other diseases that they can be contagious, like scabies, bacterial infections. It doesn't need much of the body's involvement in that. But yes, there are so many diseases which are actually coming up from the body. So reflects internal health status, critical for well-being. Obviously, we all want to look nice, so we just invest on so many things. So that's the thing, and prevents long-term complications. So what is structure and the function of the skin? Skin consists of 3 layers. We all know about it. Whenever we open anything on our phone, we just get this cross section of the skin, and it actually tells us that the skin consists of 3 layers, which is epidermis, dermis, and subcutaneous tissue. It acts as a protective barrier against pathogens and environmental change, as I've mentioned, helps regulate body temperature and fluid balance, and contains sensory receptors for touch, pain, and temperature. So what is the understanding of teen skin? teen age से अभी ही आप लोग गुजरते हुए 20s की तरफ आए हैं, उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन how to actually understand जिसमें a child basically gets changed due to the effects of hormones in the teen, and that continues in 20s and 30s and rest. So how to understand that teen skin is the androgen triggered skin changes, as we mentioned. Sebaceous glands become more active, oil production increases significantly, and as a result makes the pores clogged, and that gives rise to acne, which is the most common problem, as we were talking about a few minutes ago. And bacteria comes on that clogged pores. It's basically a cocktail that is in the making, and when the bacteria comes on the top, inflammatory process starts, and here we get acne.
So overview of the common skin problems: acne vulgaris, the prevalence is quite high. Hyperpigmentation, as that intelligent girl has mentioned. Fungal infections, as I've told you. Dandruff, because we didn't talk much about the hair. So dandruff is a very, very common problem with quite a chronic history, because if there are certain factors which are very much responsible for dandruff. Not every wide scale on the scalp is dandruff. It can be part of an eczema, it can be psoriasis, and it can be dandruff. So it needs to be diagnosed first. And the commonest problem, which is in my opinion, is the lack of hygiene. So many of us have this myth that जो रोज सर धोएगा उसके बाल गिर के तबाह हो जाएंगे और वो गंजा हो जाएगा. जो ये myth है, not to clean your scalp every day, is basically the first and most important point of the mistake that we make, and that leads to all the rest of these things, including सबसे पहले dandruff होना and then hair falls and rest of the things. So daily scalp को wash करना is mandatory in a country like Pakistan, which is the second or third dirtiest country in the world, as the air quality index is so bad, and the travel we do every day, the dust and everything. So the best time to wash your hand is when you go back home after ending the day, is the best time to wash your scalp with a good less sulfate free shampoos, and preferably medicated shampoos, which are good. And especially if you're having dandruff, then you should go to and see a dermatologist like me or someone else, and then go and take an advice and take that shampoo which is medicated, and do it daily. Leave the lather for a few minutes and then rinse it off, because these have medicines on these shampoos, whether they are of national origin or international, but they use these shampoos and they're really good. And after that, if you still have like a dandruff, we as a dermatologist, what we do, that we give a dispensing liquid that should be sprayed on the scalp that inhibits the formation of the scales on the daily basis. So that's the reason you need to see a doctor, and then he or she will take care of it, and then it can be controlled, because in most of the cases dandruff cannot be finished, it can be controlled, and same as goes for eczema and psoriasis. So first we need to diagnose, and then you have to give the lead to the doctor, so he and she can take you to a healthier scalp rather than messing around. And the people, and the most important thing before we go ahead, the people having dandruff or any scale on the scalp should strictly avoid applying hair oils. बिकॉज हमारे यहाँ तेल लगाने का एक बहुत शदीद मिथ है. इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में ये चीज़ें इतनी कॉमन है, हर चीज़ का इलाज तेल तेल तेल. जितना आप स्केली स्कैल्प या डिजीज स्कैल्प पे तेल लगाएंगे, इट्स अ केमिकल, एंड इट्स अ ग्रीसी केमिकल, एंड इट्स नेवर रिक्वायर्ड व्हेन द स्किन इज नॉट नॉर्मल. So we actually make a bigger mess by not washing it and by applying oil and leaving it for days and days. So जब हम एक के ऊपर एक गलती करेंगे तो फिर तो वो चीज़ ख़राब होनी है. ऑन द टॉप यू फॉरगॉट दैट आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम था. तो लिहाजा सर की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है. किस एजेंट के साथ कैसे, ये सारी चीज़ें डैंड्रफ के लिए जब हम देख रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. में जी दाने हो, बॉडी पे दाने हो रहे हैं, या थाई पे दाना हो गया, ये मसला. तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब आती हैं जब हमारे पास सफाई नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एंड वी आर नॉट कूलिंग डाउन आवर बॉडी. ठीक है, हर किसी को सारा दिन एसी का एक्सेस नहीं है, तो हाउ वी कैन कूल डाउन द बॉडी इफ़ वी डोंट हैव द एयर कंडीशन? एनी आइडिया? बिल्कुल सही कहा. टेक द शावर. ये तीन लड़कियां बड़ी वोकल भी हैं और बड़ी सही सही बातें कर रही हैं. इनको स्पेशल चीज़ें मिलनी चाहिए इन द एंड. यासर, ये तीनों हर चीज़ का जवाब दे रही है सही से. बाकी लोग भी दें, वो बैक बेंचर ने भी कुछ कहा है, पीछे भी जाएगा, जो जवाब देगा उसको चीज़ें मिलती रहेंगी. हाँ, तो बिल्कुल सही है. हम जब एसी का एक्सेस नहीं है तो हमें शावर करना चाहिए. जैसे हम यहाँ आते हैं तो करके आएँ, और जैसे ही घर जाते हैं तो हमारा काम है कि हम फ़ौरन शावर लें, बिकॉज ये बॉडी पे होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने कहा मैं इसको ज़रूर बताऊं. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉजेज इरिटेशन. जैसे यहाँ मैंने अभी ज्वेलरी पहनी है, मुझे अगर किसी चीज़ से भी इसमें एलर्जी हो गई है तो दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और फ्रॉम एनीथिंग. तो जैसे ही वो हो जाए तो मेरा काम है उस कॉन्टैक्ट को हटाना. एंड ऑन द टॉप, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट माई सेल्फ चेकड अप. ये व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड. एक्नी, एज हमने बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है हमारी सोसाइटी में. व्हाट इज़ एक्चुअली कॉमन इज इन द 85% ऑफ द टीनेजर्स. इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ द पाइलोसेबेशियस यूनिट. कॉमनली अपीयर्स ऑन फेस, चेस्ट, shoulders and back, and sometimes on hips as well. तो जहाँ भी ये इन
एरिया में दाने होंगे तो वो एक्नी होगी, रेस्ट ऑफ द अगर कोई थाई में कहता है तो वो एक्नी नहीं होती, वो फिर फोलिकुलाइटिस होता है. तो वी नीड टू सी व्हाट इज एक्चुअली देयर एंड देन डिसाइड द ट्रीटमेंट. वो ऐसे नहीं होता कि हर दाना जो है वो एक्नी है या हर दाना बैक्टीरियल है. वी नीड टू सी कि वो क्या है, उसका नाम क्या है और कैसे उसका इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी पे और कितना पुराना है. फिर वी डू द टेस्ट एंड अदर थिंग्स. अर्ली ट्रीटमेंट एज आई सेड इज एसेंशियल टू प्रिवेंट स्कारिंग एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, बिकॉज इफ यू डोंट स्टॉप इट, लाइक अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, नहा नहीं रहे, सफाई नहीं कर रहे, तो वो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब डिजीज़ क्रॉनिक होती है तो उसके बाद उसके लिए मेडिसिन भी बहुत चाहिए होती हैं और उसका फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है. So what is acne pathophysiology? As you can see, it's the biological mechanisms behind acne development to inform the treatment and the prevention strategies. So in the 90% of the acne cases involved, increases sebum production. That is due to the hormones that we have mentioned in the last slides, which is the primary factor in the development of the acne. 50% of the teenagers experience follicular hyperkeratinization, leading to clogged pores and acne formation. ये भी हमने पहले बात की थी. Cutibacterium acnes, they are not cute at all, but इनका नाम Cutibacterium है. So it's present in over 90% of the acne lesions, contributing to inflammation and infection. ये उन bacteria का नाम है. 75% of the individuals with acne report inflammation as a significant symptom, जैसे redness, and आप देखते हैं कि वो bumps होते हैं आपके face पर, affecting both skin appearance and the comfort. Androgens, and as I have mentioned about the hormones, they are linked to the acne severity in 80% of the adolescents, influencing sebum production and skin changes. Genetic factors play an important role. Not every teenager will get acne, but yes, if you have a genetic probability that it's a 40 to 50% of the acne cases are of the hereditary nature. आपके parents को था, आपके siblings को है, तो उसके होने के chances बहुत ज़्यादा हैं. Types of acne lesion, open comedones, blackheads, whiteheads. ये तो हम जब से 8-9 साल के होते हैं तब से सुनना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो blackheads हैं, whiteheads हैं. फिर आगे जाके हम थोड़ा ज़रा पढ़ने लिखे होने लगते हैं तो comedonal acne हो रही है. comedones, मेरे पास क्लिनिक में आके अक्सर लड़कियाँ वो टर्म्स यूज़ कर रही होती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट वो पढ़ कर आई हैं, तो दैट इज़ रियली नाइस. तो ये चीज़ें जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, यू नो अ बिट अबाउट योर डिजीज़, इट रियली हेल्प यू एंड हेल्प अस एज अ डॉक्टर टू ट्रीट इट, बिकॉज आप थोड़ा सा अपना जहन बना के, माइंड बना के आए होते हैं डॉक्टर के पास, सो दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर अस. एंड देन देयर आर सर्टेन टाइप्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स एंड सिस्ट. जो इसके अंदर आपको नोज के ऊपर दिखाई दे रहा है इन पर्टिकुलर, वो ज़रा सिस्टिक है. जो बड़ी होती है ऑब्वियसली उनको हम सिस्ट कहते हैं, वो थिक होता है, उसको ठीक करना भी डिफिकल्ट होता है और उसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो भी लॉन्ग टर्म होता है. नो ट्रीटमेंट इन एक्ने इज ऑफ शॉर्ट कोर्स. ये जो होता है लोशन लगा लिया, चीज़ें आपने फेस वॉशेस वगैरह बदल लिए, जल्दी से ठीक किया और जल्दी ठीक हो गया. एक्नी और जल्दी दो अलग अलग चीज़ें. एक्नी और जल्दी, ये दोनों ऐसे, अगर आपने इसको जल्दी किया है वो कभी ठीक नहीं हो सकता. एक्नी इज अ क्रॉनिक वन. Whosoever will describe acne will always say it's a chronic one. So there is no rush, and the basic treatment in acne is tablets, and then comes the role of topical. हम समझते हैं हम लोशन लगा लेंगे तो वो रुक जाएगा, उसकी सप्लाई तो बॉडी के अंदर है तो उसको कौन देख रहा है. तो लिहाजा for that you need a doctor and then a dermatologist in particular to take charge and treat it as quickly as possible. So what are the acne risk factors? Other hormonal changes, as we have mentioned, genetic, stress triggers breakout acne. एग्जाम से पहले कोई और स्ट्रेस हो, सबसे ज़्यादा उसी वक्त एक्नी निकल रही होती है. और जब एग्जाम्स के 2-3 महीने आप लोग के तो अब हर बहुत शॉर्ट टाइम पर हो ही रहे होते हैं सेमेस्टर में, तो दैट गिव्स अ गुड ब्लो टू एक्नी एज वेल. इम्प्रॉपर स्किन केयर, so many of us are doing it. कभी कोई ऑयली एक्नी का पेशेंट ऑयली क्लेंजर से मुंह साफ कर रहा है, कोई सिर्फ एक साबुन से मुंह धो रहा है, कोई टॉवल से मुंह रगड़ रहा है. हर एक की अपनी एक स्टोरी होती है. ऑब्वियसली दैट एड ऑन टू द डिजीज, एंड डेफिनेटली इफ यू हैव सम एनी डिजीज यू शुड टेक केयर ऑफ दोज पॉइंट्स. कॉस्मेटिक मिसयूज, अभी हम बात कर रहे थे कॉस्मेटिक्स की. ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि इसके अंदर भी चूँकि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस ना ओवर अ सिंगल क्लिक मौजूद हैं, तो एवरीबडी is got an access to buy anything that like, unlike आज से 10 साल पहले चले जाएं तो हम सिर्फ शॉप्स जाकर ले पाते थे with very few good brands. अब इतना कुछ आ गया है कि जब आप बैठे बैठे क्लिक कर रहे हैं तो आप बहुत सारी गलत चीज़ें भी क्लिक कर सकते हैं. And then when you apply cosmetic, in specifically in a patient having acne, it's a complete disaster because all those patients who are having acne, their makeup usage
अलॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर वंस, अदर जो फीमेल्स होंगी वो इतने के बजाय सिर्फ इतना सा है, बिकॉज दे कैन नॉट यूज़ एनी क्लॉगिंग मेकअप विच इज़ ये आपकी पेन स्टिक्स, फाउंडेशंस, कुछ भी वो नहीं लगा सकते. The only thing that they apply is the concealers and then on the top powdery makeup which is of the mineral content only. So वो कितने हैं मार्केट में, वो कितनी easily मिलते हैं, we all know about it being a female. And foundation सब जगह मिल जाता है. जैसे आप foundation लगाते हैं और TV stick लगाते हैं, आपकी सारी acne convert हो जाती है to nodulocystic and even it will go very red and bad because what is the main thing behind them? They contain oil that goes inside the pores and choke the already clogged pores which was causing acne. So the disease and the whole scenario gets quite worse, and especially the peer pressure that we have these days. किसी की डेथ पे जाएं तो भी मेकअप है, किसी की शादी पे जाएं तो भी मेकअप है, यहाँ आए तो भी मेकअप है. तो आप मुझे बताएं मेकअप के बगैर कैसे गुजारा है. तो लिहाजा मेकअप लगाना और मेकअप उतारना, उनके जो एटिकेट्स और आदाब हैं वो सबसे पहले सीखने चाहिए और उनके बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए, ताकि हमें हमारी स्किन का जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हैंडलिंग द डिजीज एंड टैबलेट्स एंड ऑल, इट्स जस्ट हाउ यू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड द डेली बेसिस, दैट शुड बी डिस्कस्ड एज वेल. और सबसे लास्ट चीज़ जो सॉरी मैंने मेंशन नहीं की, स्टेरॉइड मिसयूज. डू यू हैव एनी आइडिया व्हिच इज the commonest way in Pakistan how we abuse steroid? Any idea? Whitening, इसमें तो सारी क्लास को इनाम मिलना चाहिए, सबको पता है इस बारे में. कौन सी क्रीम्स हैं चले तो आपकी नज़र में जो फाइजा, शुक्र हम फाइजा की तरफ से नहीं आए. अच्छा, और क्या है फाइजा के अलावा? बेटनोवेट, बिल्कुल बेटनोवेट तो स्टेरॉइड है ना जो उनमें ऐड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग सुपर पोटेंट स्टेरॉइड किसी भी चीज़ के अंदर डाल दें तो वो फ़ायदा बन जाएगी. लेकिन फ़ायदा देखें या कोई भी चीज़ का हम नाम ले रहे हैं, अभी मैं कल परसों सहरी की ट्रांसमिशन देख रही थी, उस ट्रांसमिशन में अजान के आने से पहले 4 ब्यूटी क्रीम आ रही थी. मुझे बताएं जिस तक हम पानी के आखिरी घूंट पी के दुआ पढ़ रहे होंगे उस वक्त वाइटनिंग का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है. एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू लुक एट. मैं भी एज एन डॉक्टर आई वाज अमेज्ड टू सी कि ना तो खाने के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे, ना सहरी के टाइम पे ब्यूटी वुड बी द लास्ट थिंग आई वुड बी बॉदर्ड अबाउट, इवन बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट. सो दे आर इनकल्केटिंग दिस थिंग इन आवर माइंड डे एंड नाइट. मैं रोज़ देखूंगी तो कभी तो खरीद ही लूँगी, और अगर मुझे कोई एक दफ़ा उठ के ये कह दे कि आप काली हैं तो ये ऐड तो मेरे कान में घूम ही रहा है, जी वाइटनिंग क्रीम है, ये वाइटनिंग क्रीम है. बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मैंने फ़ौरन से 400-500 रुपये निकाले और ये करंट तो पता नहीं फलां हर्बल और ये सब. ये तो जो हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे इन्होंने 1-2 के नाम दिए, वो तो हम इंटरनेट पर जाके ढूंढते हैं ना, ये तो टीवी पे आ रहा है. तो जब एक चीज़ नेशनल टीवी पे प्रमोट की जा रही है कि सबको गोरा होना है विद दीज सब स्टैंडर्ड, उनमें क्या है, इनमें सिर्फ स्टेरॉइड नहीं है. या आपको यासिर भी ऑब्वियसली बाद में बताएंगे, आप भी फार्मेसी पढ़ रही हैं तो आप लोगों को पता होगा कि उनमें मर्क्यूरी और पॉइजनस केमिकल्स भी. इट्स नॉट अबाउट हम स्टेरॉइड पे रोना धोना मचा रहे हैं, दे आर द हार्मफुल प्रोडक्ट्स दैट कैन कॉज स्किन कैंसर एंड अदर सॉर्ट ऑफ कैंसर्स, क्योंकि ये सब बॉडी में जाके क्या डिपॉजिट हो रहा है. और जो चीज़ें डिपॉजिट हो रही है इन्वायरमेंट से, ऐसे ही दुनिया में 1:3 का रेशो नहीं हो गया कि सबको कैंसर हो रहा है. यही वो छोटी बड़ी चीज़ें हैं जहाँ हम गलती करते हैं एंड स्लोली ईयर्स ये चीज़ें हमारे अंदर डिपॉजिट होती हैं. और मर्क्यूरी कर रहा है कैंसर, और दुनिया में सबसे ज़्यादा डेडली स्किन कैंसर है, और तो कोई कैंसर है नहीं. और अदर कैंसर्स के जाके कोई लिवर का हो जाए, ब्रेस्ट का हो जाए, क्योंकि फीमेल सबसे ज़्यादा लगाएगी केमिकल्स, क्रीम्स, मेकअप्स एंड ऑल. तो सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो हैव गॉट मर्क्यूरी इन दैट. सो वी आर नॉट ओनली बॉदर्ड अबाउट स्टेरॉइड, वी आर बॉदर्ड अबाउट अदर ट्रेस केमिकल्स which are hidden in these fake products or even in the substandard products, and that is quite scary. So what are the acne complications? Permanent scarring risk, post-inflammatory hyperpigmentation, psychological effects as we have talked, anxiety and self-esteem. Obviously हमें किसी को भी confidence feel ही नहीं होगा अगर हमें हम अच्छे नहीं लग रहे. And long term cosmetic concerns जो हमने अभी बात की है, वो मैंने इसलिए मेकअप और इन चीज़ों पर ज़्यादा बात की बिकॉज यहाँ काफ़ी सारी फीमेल्स हैं और आप लोग जिस एज ग्रुप में हैं ये बड़ा अट्रैक्टिव सा एक सीन लगता है जब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, हमें क्या पिक एंड चूज़ करना है, तो गलत सिलेक्शन कैन लीड टू डिफरेंट इश्यूज. सो PIH, as I've mentioned, is commonly occur after acne or skin inflammation, more prevalent in individuals with darker skin types. What is PIH? Is the increased melanin production, जिसकी वजह से आप डार्क लगने लगते हैं.
ऑब्वियसली वी इंट्रोड्यूस ट्रीटमेंट्स तो वो जल्दी ठीक होता है। सन एक्सपोजर, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी ऑल नो यूवी रेडिएशंस, और जितना खुली यहाँ पर सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा हम इसी अपनी लाइफ के इस फेज़ में टैन भी होते हैं और अजीब भी लग रहे होते हैं। मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ तो मुझे इस बात का बहुत अंदाज़ा है, लेकिन जब आप इंडोर होते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो ये भी एक है। ऑब्वियसली रिंकल्स को, पिगमेंटेशंस को, फ्रैकलिंग को, मोल्स की क्वांटिटी को, हर चीज़ को करता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हो तो डीएनए डैमेज भी करता है और स्किन कैंसर भी आता है। लकीली वी आर ब्लेस्ड विद एशियन स्किन, तो हमें नहीं है इतना मसला, लेकिन येट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर। Importance of sunscreen, it can be never underemphasized because it is the most very important product that हम जैसे मूड होते हैं सुबह तो हमारा काम है हमें सबसे पहले इसको फेस के ऊपर लगाना है। कितने तरह के बताइए सनब्लॉक इस वक्त अवेलेबल हैं? कुछ टाइप्स आप लोगों को मालूम है? जेल बेस, एक्सेलेंट। और सनस्क्रीन और क्या? टिंट, एग्जैक्टली, द बीबी क्रीम वन। और मैं बार बार सवाल इसलिए कर रही हूँ कि ऑडियंस रोज़े की हालत में सो ना जाए, इसलिए मैं जगाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। बताइए। देखिए ऑब्वियसली सनस्क्रीन जैसा भी हो, लेकिन ऑब्वियसली उसको रोज़ लगाना है। क्या क्या टाइप्स हैं? जैसे इन्होंने कहा जेल, जेल किसको लगाएंगे? एक्सीलेंट। और लोशन किसको लगाएंगे? ड्राई स्किन। अच्छा, जेल जो है हमने ऑयली स्किन को लगाया, लोशन और क्रीम्स हम लगाएंगे ड्राई को। एंड देन समवन सेड द टिंटेड वन व्हिच इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्जन फॉर द फीमेल्स, बीबी क्रीम के मैंने जैसे कहा लाइट मेकअप आपने कर लिया, वो बहुत अच्छा कवरेज देता है। तो आपने जो बीबी क्रीम लगाया वो भी दो तरह की आती है। एक तो उनमें कलर टोन्स आते हैं, एक नंबर 1 आएगा, एक नंबर 2 आएगा, वो आप अपना शेड चूज कर लें। और इसके अलावा कई कंपनीज ने इसी तरह मेडिकेटेड में, क्योंकि मेडिकेटेड जो सनब्लॉक होता है उसमें SPF हमेशा ज़्यादा होता है, 50, 60, 70, 100, कभी कभी 120 भी देखा गया है। तो वो एक होता है वर्जन जो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट उसमें पाउडर्ड वर्जन भी आए सनब्लॉक के, कि जब आपने ये सारा हमने टिंटेड लगा लिया, उसके ऊपर वो पाउडर वाला सनब्लॉक जब हम टैप करेंगे तो हमें किसी और मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। एंड एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस लाइक 5 मिनट्स अगो कि वो मिनरलाइज्ड है। मिनरलाइज्ड मेकअप एंड मिनरलाइज्ड सनब्लॉक वुड नेवर क्लॉग योर पोर्स। तो आपको एक्नी होगी नहीं, और अगर एक्नी है तो मेकअप विल नेवर बी द फैक्टर बिहाइंड। तो ये चीज़ें, इसकी भी साइंस है सनब्लॉक की। ये नहीं होता सनब्लॉक लिया और ऐसे हमने लगा दिया। अगर ऑयली स्किन वाले ने ये जेल ना लगाया और क्रीम लगा दी या लोशन लगा दिया, वो पूरा ड्रिप करता रहेगा, तो वो तो फिर 2-3 दफ़ा लगाएगा ही नहीं। और लड़कों के लिए जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी में पीछे बैठे हुए हैं, उनके लिए और भी वर्जन है। अगर वो जेल नहीं लगाना चाहते तो स्प्रे बिल्ट है, बिल्कुल वाटरी, पानी की तरह। तो वो भी बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, आप जाएं तो देख लें, डॉक्टर से लिखवा लें। एंड देन यू स्प्रे ऑन योर फेस, योर हैंड्स, इवन इफ यू आर इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स, यू शुड स्प्रे इट ऑन योर फेस एंड बॉडी, एंड दैट विल बी द बेस्ट वर्जन। एंड यू शुड टॉप अप द सनब्लॉक एटलीस्ट ट्वाइस इन द डे टाइम, इफ नॉट थ्राइस का मौका ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्वाइस तो होना चाहिए। तो वो इसका बहुत अच्छा कवरेज देता है। सिंस आप फार्मेसी के स्टूडेंट थे तो मैंने कहा मैं आपको ज़रा डिटेल में ये बात बताऊं कि किस तरह के सनब्लॉक्स हैं। अब फंगल इन्फेक्शन विच इज़ अ वेरी मोस्ट कॉमन, एज आई मेंशन, कि ये वो हैं जिनको बॉडी प्रमोट नहीं करती। वी कैच इट फ्रॉम समवन एंड वी कैच इट व्हेन वी डोंट टेक शावर। तो उसकी वजह से बनता है, बिकॉज हमारी बॉडी स्वेट की वजह से ह्यूमिड एंड मॉइस्ट रहती है। फंगल इन्फेक्शंस लाइक टीनिया आर कॉमन इन द ह्यूमिड कंडीशन caused by dermatophyte fungi and spread through direct contact or contaminated surface. Steroid misuse can worsen the disease, as mentioned है। सबसे important यही होता है कि steroid बहुत ज़्यादा लगाने से ये जो है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और एज अ रिजल्ट फंगस भी ख़राब होता है। और प्रिवेंटेबल थ्रू हाइजीन एंड अर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज आई मेंशन आर द सो फॉलिकुलर, इस तरह से पस्ट्यूल्स बन जाते हैं कॉमनली इन द टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स विद एक्नी एंड इवन विदाउट एक्नी, इंक्लूडिंग फोलिकुलाइटिस व्हिच इज द इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, इम्पेटाइगो द कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो घर में एक को हो जाए तो सबको होता है, एंड देन मेनली कॉज्ड बाय स्टेफ ऑरियस एंड कैन वर्सन द स्किन कंडीशंस। इट्स प्रिवेंटेबल विद प्रॉपर हाइजीन। सो हाइजीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एंड स्पेशली जब कुछ नहीं है तब भी, और जब स्किन की डिजीज़ हो जाए तब तो और भी
ओवर एम्फेसाइज है कि हम जितना नहा के साफ रहेंगे उतना बेहतर होगा. कमिंग बैक टू द पॉइंट आई मेंशन्ड इन द डैंड्रफ, शुरू में डैंड्रफ एंड seborrheic dermatitis are the common scalp conditions, and after that psoriasis is the third one, which is very common, caused by overgrowth of Malassezia yeast in the oily scalp environments, which leads to, ये देखें इस तरह के छोटे स्केल्स बनते हैं. आप जो उसको धोएंगे नहीं तो ये और बनेंगे, और जब आप यूँ करेंगे ओ मुझे तो डैंड्रफ हो गया, तो फिर उस वक्त हम जो है वो टेलीविजन वाले शैम्पूज की तरफ नहीं जाना चाहिए. हमारा काम है हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे एडवाइस लेके इस डिजीज़ को काउंटर करें, क्योंकि ये ऐसे होगा नहीं. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एज आई मेंशन, इफ आई स्पेशली फीमेल्स इफ दे आर एट होम कटिंग चॉपिंग, डिटर्जेंट का इस्तेमाल, वो ज्वेलरी ज़्यादातर फीमेल्स पे ज़्यादा, मेन में आता है. फॉर इफ लाइक दे आर मोबाइल सेल फोन से भी बड़ा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, तो वो भी देखने की ज़रूरत है. की चेन होल्डर्स, लेदर, शूज़, बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम एक्सपोज होते हैं और उनके इस्तेमाल से ऐसा होता है. टू अंडरस्टैंड दिस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एलर्जेंस वुड लीड टू इचिंग. स्टेरॉइड मिसयूज़ हमने इस पर बात कर ली है. What are the basic side effects of the steroid misuse? Good. जी, लिवर तक बात, हाँ आगे जाके बिल्कुल, अभी इमीडिएट तो नहीं लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है. और हम इसे नो नहीं कह सकते. हाँ फिर स्किन थिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन स्किन को क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, वी टॉक अबाउट दैट. The redness, because of the thinning, the obvious nature of the capillaries जो हमें नीचे से रिफ्लेक्ट करना शुरू करती हैं, जो हमारे वेस्कुलेचर है वो ऊपर से दिखना शुरू हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. और आपको कॉन्स्टेंटली हीट एक्सपोजर पे बहुत रेडनेस एंड सेंसिटिविटी. यस, बिल्कुल. देखिए, बीइंग इन कराची जो मेरा भी है और इतना सनी हम रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो एनीथिंग लेस देन 60 तो मैं भी प्रिस्क्राइब नहीं करती. 60 मिनिमम, इसके ऊपर जितना आप जाना चाहें. 30 वाला आते हैं लेकिन मैंने कभी खुद भी नहीं प्रिस्क्राइब किए. जितना स्ट्रॉन्ग कवरेज है, अब मैंने आप लोगों से कहा कि दिन में से 2 से 3 दफ़ा लगाएं, मुझे तो दोबारा टाइम ही नहीं मिलता. मैं तो सुबह जो लगा कर गई हूँ दोबारा लगाया ही नहीं है. तो अगर वो वैसे 20-30 होगा तो उसमें कुछ होगा नहीं. बहुत सारे मेकअप्स अगर आप नोट करें तो 5, 10, 15 उनमें भी होता है. तो अगर आप सन ब्लॉक और हल्का सा मेकअप करके जा रहे हैं तो आपकी कवरेज अच्छी होगी. तो नॉट लेस देन 60 इज द बेस्ट वर्जन, वेदर यू टेक इट इन जेल, लोशन, क्रीम, स्प्रे, एनी वर्जन, बट एटलीस्ट शुड बी 60. So cause skin thinning, जैसे हमने बात की, worsening of the acne, increased sensitivity, permanent skin damage, that is a very bad complication of that, and should only be used under proper medical supervision. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमने पहले भी बात की, अभी भी कह रहे हैं क्या होता क्या है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. हमारी जब अपीयरेंस सही नहीं होती तो हम बाहर जाना नहीं चाहते. बहुत सारे लोग थैंक्स टू कोविड के बाद से मास्क पहन के सारा वक्त घूम रहे हैं. चलो ठीक है, वो भी एक थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस दे देता है कि एटलीस्ट वी कैन गो आउट विदाउट हाइडिंग आवरसेल्व्स. बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो इन द पार्टीज इन द इवनिंग, शादियों में, तो हम कैसे जाएंगे? लोग हाइड करना शुरू कर देते हैं, लोग घर में से बाहर नहीं जाते. जी हमें ये मसला है. और ये मास्क, और उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एक्ने के पेशेंट्स में आता है वो हिजाब से आता है. अब उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि यहाँ मैंने वो भी देखा है तो बात कर रहे हैं तो उस पर कर लें. मास्क रिलेटेड एक्ने एक फीचर था जो बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ उन जिन दिनों सब लोग बहुत मास्क पहन रहे थे. लेकिन मास्क और हिजाब के अंदर दोनों में कवरिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना. कवरिंग इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट हाउ वी आर डूइंग इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो मैनी ऑफ अस, जो हम में से लोग हिजाब लेते हैं, वो बालों को जब लपेटते हैं तो वो बहुत टाइटली इसको दुपट्टे को बांधते हैं. और जो हिजाब है वो हम में से बहुत कम ही है जो रोज़ धोएंगे. जब आप उसको धो ही नहीं रहे तो वो क्या कर रहा है, वही बैक्टीरिया को, उन सारी चीज़ों को, जब आपको एक्नी है वो बहुत बुरा वर्जन बन जाता है. सो आइडिया ये है, या तो आप रोज़ निकाब धोने की आदत रखें तो कोई बुराई नहीं है, वरना डिस्पोजेबल मास्क बेहतरीन है. दिन में 3 भी फेंक दें यूज़ करके, इट्स ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं है, ना उसकी कॉस्ट ज़्यादा है ना कुछ है. लेकिन आपका फेस और आपकी एक्नी का जो एक रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज सारा दिन हमने पहने रखा है, एंड ऑन द टॉप गर्मी बहुत है. यहाँ तो गर्मी है अभी 8.5-9 महीने. उसके हिसाब से अगर हम ये कर लें तो हमारे हिजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं. द वे वी आर डूइंग इट इज़ रॉन्ग. तो उससे हमारी एक्नी को जो ट्रीटमेंट के साथ एक प्रिवेंशन है उसमें बहुत हेल्प मिलती है. एज अ डॉक्टर मैंने कहा मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूँ, क्योंकि ये बहुत होता है कि हम रोज़ हिजाब नहीं धो पाते तो फिर वो बात ख़राब हो जाती है. अगर रोज़ धो रहे हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स अप टू यू.
Obviously, the most important thing, the towels, which are the number one culprit of harboring bacteria. So whosoever is having any problem should never use towels. Would go for tissue, use किया फेंका. जितना आप अपनी सेफ्टी, अपनी प्रिवेंशन करेंगे उतनी डिजीज में उसकी कंट्रीब्यूशन भी कम होगी. Skin hygiene, as I told you, wash face daily, avoid harsh products, avoid touching face. हर थोड़ी देर के बाद, ये हम पढ़ रहे होते हैं, हम सबकी आदत है, ये इस तरह बैठ के कोई ना पढ़े. इससे दाने बनना इनिशिएट होते हैं, इससे दाने खराब होते हैं. क्या होता है कि हम सब पढ़ते हुए ना ध्यान ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो हर दफ़ा यूँ हाथ रख के थोड़ी थक भी जाते हैं, तो कभी ऐसे कभी वैसे हर तरह. तो अवॉइड टचिंग हैंड्स. ताकि अभी भी ये बीच में इन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ, ये इनका फेस वॉश कैंसिल हो गया. हाँ, तो इस तरह से करने से अच्छा कंफर्टेबल भी लगता है, लेकिन ज़्यादा हमें ये नहीं करना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेंटेन स्कैल्प हाइजीन, एज आई सेड, रोज़ धुलना चाहिए. तेल प्लीज़ अवॉइड करें. लगाया है तो खाली 1 घंटे के अंदर उसको हटा दें अगर सर में कोई स्केलीनेस नहीं है. एंड यूज़ क्लीन पर्सनल आइटम्स. डू नॉट शेयर थिंग्स विद योर सिस्टर्स एंड ब्रदर. कंघियाँ, टॉवल, चीज़ें, सब कपड़े सब अलग रखें, वरना बहुत सारी इन्फेक्शन एक दूसरे को लगाते हैं. रोल ऑफ डाइट, इस पर जितनी भी बात की जाए कम है. इट्स क्वाइट ओवर एम्फेसाइज्ड ऑल ऑफ द टाइम इन ऑल ऑफ द सोशल मीडिया थिंग्स एंड द टेलीविजन. बट येस, हमारी डाइट एक्चुअल डाइट से बहुत डिफरेंट होती है. पढ़ने के लिए ये डाइट है, खाने के लिए फूड पैंडा है, तो फिर वो तो काम नहीं बनता. तो वहाँ पे हमें बैलेंस रखना है, कहाँ हमें ये फास्ट फूड को खाना है, कहाँ हमें हेल्दी मील रखना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो विटामिन सी, ये सपोर्ट, ये सब आपको पता है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी. लेकिन येस, मीट का एक्स्ट्रा कंजम्पशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने चाहिए. और पल्सेस, दालें जिनको हम छोड़ देते हैं हमेशा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ उस पर भी काम होना चाहिए. ऑफ कोर्स हाइड्रेशन. अच्छा, अब हाइड्रेशन पे भी एक बात हो जाए. कई लोग उसका बड़ा गलत मतलब लेते हैं, और मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं 3 लीटर पानी तक वो रोज़ पी रहे होते हैं, और वो उनके बच्चों को पिला रहे, पिए जाओ. जैसे मैंने उस दिन उसको पेशेंट को कहा, मैंने कहा 3 लीटर तो हम तभी पी सकते थे कि या तो मछली होते, या मरमेड होते, या हम पिछले जैसे हंस के कहते हैं जन्म में कोई मछली थे. तो मैंने कहा मुझे बताएं, गुर्दे क्या आप बॉडी से बाहर निकालना चाहती हैं? तो उसका टीनेजर लड़का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पानी नहीं पीना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक आई एम अ fish. And that is a tanzia statement. Obviously, it's a satirical comment that why we are overdoing it. क्योंकि हमने सुन लिया कि हमें पानी पीना, तो हम सारा दिन पानी पिए जा रहे हैं. पानी ज़्यादा पीने से हम अपने बॉडी का मिनरल इम्बैलेंस पूरा आउट कर देते हैं. सो इट शुड बी एट लीस्ट 1 to 2 लीटर्स के बीच में, ठीक है. नेवर फॉर 3 लीटर और नेवर मोर देन 2 लीटर. अगर बहुत स्वेट कर रहे हैं वो फिर दूसरा फिर उसका बैलेंस है. एंड फॉर द एवरी सिंगल कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी वी आर टेकिंग आउट 2 glasses of water. तो आपको ये भी बैलेंस करना है कि अगर आप टी कॉफ़ी बहुत पी रहे थे तो आप पानी कितना ले रहे थे, ये देखने की ज़रूरत है. बट 3 लीटर इज़ नेवर एन आंसर. एंड किसी भी बीमारी में पानी पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना. हम कहते हैं पानी पियेंगे तो एक्नी नहीं होगी. इट्स अ हार्मोनल थिंग. आप जो आपके हार्मोन्स ही ख़राब हैं तो पानी क्या कर लेगा? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजीज एंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. सो टॉकिंग ऑन द रॉन्ग लाइन्स बट ऑलवेज मिसगाइड द पेशेंट्स एंड द पीपल अराउंड यू. सो एविडेंस बेस्ड स्किन केयर इज दैट द जेंटल क्लेंजिंग रूटीन्स जैसे होने चाहिए, डेली सनस्क्रीन एप्लीकेशन, स्टेरॉइड यूज, ये सब हम बात कर चुके हैं. Where to consult dermatologists, where to consult people like me, जब severe acne है, when you don't have a clue what's happening to you and you should see a doctor, signs of infections and no improvement with the basic care that you're already doing. What are the skin problems in Pakistan? बताइए. Good. 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 और एक्नी ठीक, और ऑयली स्किन ठीक, टैनिंग, फेशियल हेयर्स एग्जैक्टली गुड. पाकिस्तान फेसेस यूनिक चैलेंजेस. टू टोन स्किन. और हेयर के बारे में कौन बताएगा? रिंकल्स. हाँ, हेयर रिलेटेड, नेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम कितने आजकल, थैंक्स टू द नेल आर्ट हर कोई करा रहा है, और उससे जो नेल का हाल हो रहा है तो तौबा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो पाकिस्तान फेसेस यूनिक चैलेंजेस, स्टेरॉइड मिसयूज, ह्यूमिड क्लाइमेट, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट प्रॉपर स्किन केयर. ये वाली लाइन से मैं खुद भी एग्री नहीं करूँगी क्योंकि इस वक्त ओवर अवेयरनेस चल रही है. हर आदमी माइक लेता है, फ़ोन सामने रखता है और शुरू हो जाता है. सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स, अर्ली इंटरवेंशन इज़ क्रूशल, डेली सनस्क्रीन, अवॉइड हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कंसल्ट डर्माटोलॉजिस्ट एंड बैलेंस डाइट. हमने सबकी समरी यहाँ कर दी.
Key messages: skin health is essential. Most skin problems are treatable if you don't make a mess out of it. Early care prevents complications. Avoid myths and totkas, please. And trust medical science and consult experts. As you can see, सारे आपको दिखते हैं, सारी बातें हम कर चुके हैं पहले, तो मैं इसलिए ज़रा इसको क्विकली करूं क्योंकि हम टाइम से ज़्यादा जा चुके हैं. एंड टू मैनी एंड रिलायबल प्रोडक्ट्स एज आई मेंशन है, देखकर हमें उन्हें टेम्पटेट होकर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द exact right product for our skin. Thank you very much. And with that, I will end my talk. It was a lovely experience to be a speaker here. I would like to thank Ziauddin, Faculty of Pharmacy, to give me this opportunity to speak here along with the Gen Pharm to make this event possible. And as a closing remark, you are a lovely audience, very interactive, very intelligent people. And I hope with all this information that you have gained, my information is with you. Now you can connect with me at any time, and whenever you have any issues regarding skin health, nail and beauty, I'm always there for your help. Thank you so much and have a lovely day. And now we are honored to have Dr. Irfanullah Khan Tareen, President of the Pakistan Association of Dermatologists and a highly respected expert in clinical and aesthetic dermatology. With over 18 years of experience, he has made significant contributions of advancing skin health in Pakistan. As he is joining us virtually today, we will now be playing his recorded message. Please direct your attention to the screen. Bismillahirrahmanirrahim. Respected faculty, distinguished colleagues, and dear students, Assalamu alaikum. First of all, I would like to appreciate Dr. Najia Ashraf for beautifully explaining the science of different dermatological entities like acne, the skin barrier, the dryness, the sun protection, and their treatment. Today's session was not just about the skin, it was about understanding how our largest organ reflects our internal health, hormonal balance, lifestyle, and even emotional well-being. Dear students, your teenage years are the time of hormonal changes. Acne, oily skin, and pigmentation, these are not the flaws. These are biological processes. The real issue is misinformation, social media myths, self-medication. So these are the myths I'm saying. Healthy skin is not about fairness. It is not about the filters. It is about function, protection, and confidence. I must emphasize something very important. Skin conditions affect emotional health. Acne can reduce your confidence. Pigmentation can create social anxiety, but psychological scars are also one of the effects of your illness. This is why the early consultation with a qualified dermatologist is necessary. It's the prevention medicine, which includes education of the people, sun protection, rational topical therapies, avoiding steroid misuse, and treatment of early inflammatory conditions. With that, we can reduce post-inflammatory pigmentation, acne scarring, antibiotic resistance, steroid damage to the skin. Always remember three pillars: prevention, protection, and professional guidance. Prevention can reduce the damage, protection preserves the barrier function of the skin, and professional guidance prevents the complication. Your skin is not appearance. It is your shield, it is your identity, it is your confidence. Don't experiment anything. Try to consult, as I said earlier, consult the proper dermatologist. Because when your skin is healthy, you don't just glow outside, you feel confident inside. Healthy skin is not a luxury. It is a responsibility to yourself, to your future. Thank you very much. In end, I would like to thank Mr. Yasir for arranging such a good program. I wish you all the best. I hope my message is brief, and thanks for hearing it. Now I would like to respectfully invite Dr. Mohammad Yasir Mubarak to kindly come on stage and share his valuable words with us. Sir, we look forward to your insightful address. हमारे जो है फीडबैक के वादे होते हैं, उसी फीडबैक के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट्स को जो है डिजाइन करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स की मैं हाईलाइट दे देता हूँ।
सनबॉक्स की बात की डॉक्टर नाजिया ने, सनबॉक्स की बड़ी रेंज है और जैसे मैंने बताया साइंस बेस्ड है, तो हर प्रोडक्ट जो है वो स्टडी के ऊपर जो है वो फॉर्मुलेट की गई। साइंस के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डॉक्टर नाजिया ने उसको फेल कर दिया है, उसकी एसपीएफ फैक्टर्स होते हैं, तो कौन सा एसपीएफ फैक्टर है वो स्किन के हिसाब से और उसका जो है वो आपका सन एक्सपोजर कितना है, यूवी एक्सपोजर कितना है। सनब्लॉक स्पेक्ट्रा लॉस 100 है, स्पेक्ट्रा लॉस 60 है और एससी है। तो जहाँ सीबम का वहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रा मैट है और जहाँ पे आप सिंपल सनब्लॉक चाहिए केमिकल फिजिकल सनस्क्रीन के साथ, तो वहाँ 60 है। तो इस तरह डिफरेंट हमारी सीरम के यहाँ पे एक्टिंग कंट्रोल के लिए बहुत सारे नियासिनामाइड्स के अंदर है और हेमोग्लोबिन एसिड जैसे, तो आपकी एक्टिंग और हाइड्रेशन दोनों को जो है कवर करता है। फिर बहुत बड़ी रेंज है इसकी मैजिस्ट्रेट की है वो एक अलग प्रोडक्ट, उसके अंदर हमारी और ब्राइटनिंग सीरम है। तो कोई भी चीज जो है मैं अगेन आपसे कहूँगा अगर यूज करें तो डॉक्टर की एडवाइस पहले ले लें, आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करवाएं डर्मेटोलॉजिस्ट से और उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करें। तो मेडिसिन के अंदर बेसिकली विटामिन सी है, एस्पार्टिक है, ये मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपको आपकी स्किन हाइड्रेशन हमारे ये प्रोडक्ट है जिसमें आपको विटामिन सी और मैडम इस्तेमाल भी है, विटामिन ई है और डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम हो रहे होते हैं उसके अंदर हम सकते हैं। ये पूरी प्रोडक्ट्स रेंज है, ग्रामाइन है, मॉइस्चराइजर है, बहुत बड़ी रेंज है। तो ये आपको जो है वो बाहर हमारे इंटरनेट भी है, वहाँ से आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा जो है वो सेशन रहा, बहुत इंगेजिंग सेशन रहा। ऑडियंस जो है वो खूब बता देते हैं कि ये सेशन सक्सेसफुली हो गया है, तो आप लोग के इंटरेस्ट से गए। और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा फैकल्टी का, डॉक्टर मसूद का, डॉक्टर मुद्दत का, डॉक्टर अजीब का, ये उन्होंने जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दी और ये सेशन जो है वो अरेंज करवा। थैंक यू वेरी मच। Now we come to a very special moment of today's event, the shield distribution ceremony. As a token of appreciation and gratitude to our respected guests, thank you, Dr. Nazia. Moving forward, we also have a shield of appreciation for Dr. Irfan. Since he is unable to join us today, we would like to request Dr. Yasir Mubarak to kindly come forward and receive this shield on his behalf. Dr. Yasir, please stay with us on stage for a moment. We would now like to present our final token of gratitude and appreciation for your effort in bringing our distinguished guests to this event. I would like all the cosmetic science students to come here so we can take a good photo.